ریڈی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو پریس کانفرنس پاکستان تحریک انصاف ٹاؤن بچے کی کر رہی ہے، اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے یہ پریس کانفرنس بلائی ہے، جس میں میڈیا پرسنز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہماری جو پوری ٹیم ہے ٹاؤن بچے کی میں پاکستان تحریک انصاف کی، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اصل میں آج تک بچیکی کے اندر اور ٹاؤن بچیکی کے اندر، جس میں مختلف علاقے شامل ہیں، ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس شہر کے اندر کوئی بندہ سیاہ کرے یا سفید کرے، آج تک کسی بندے نے اس ایشو کے اوپر بات نہیں کی۔ تو الحمدللہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میری ٹیم پاکستان تحریک انصاف ٹاؤن بچیکی کا ہر ممبر دلیر ہے، بہادر ہے، اور تمام پوائنٹس کو جو بھی اگر کوئی غلط کرتا ہے اس کو بھی ہم منظر پر لے کر آتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ صحیح کرتا ہے تو اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا جو گورنمنٹ کا انسٹیٹیوٹ ہے وابڈا کے اندر ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر ہونے والی جو کرپشن ہے اس کو بے نقاب کرنا، اور اس کے اوپر جو ہمارے ڈسٹرکٹ کے سپرنٹینڈنٹ انجینئر ہیں رانا ایوب صاحب کی جو کارروائی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ دن پہلے بچیکی کے اندر ایک نامی گرامی شخصیت جو سابقہ ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں، ان کی بجلی چوری پکڑی گئی اور بوگس میٹرز پکڑے گئے، اور اس کے علاوہ مطلب اور بھی 25 میٹر ٹوٹل تھے جو بچیکی کے اندر بجلی جہاں سے چوری کی جا رہی تھی ان کو پکڑا گیا۔ اس کے اوپر جو کارروائی ہوئی وہ سپرنٹینڈنٹ انجینئر رانا ایوب صاحب کے حکم پر ہوئی، اور اس وجہ سے ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو مطلب اس چوری میں جو لوگ انوالو ہیں، ہم ایک تو ایسی صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ صرف چوری کو پکڑنا بہت بڑا کام ہے، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو چور پکڑے گئے ہیں، جن کی چوری پکڑی گئی ہے، ان کے خلاف اب تک تقریباً 20 دن ہو گئے، آپ نے کیا کارروائی کی ہے؟ عوام جاننا چاہتی ہے کہ جو ان کے حقوق پر ان کے جو یہ گورنمنٹ مطلب یہ جو چوری ہوتی ہے یہ عوام کی چوری ہے، عوام کے پیسوں کی چوری ہے۔ ان لوگوں کے جو بجلی چوری ہوتی ہے ان کے بلز عام عوام کو پے کرنا پڑتے ہیں۔ تو ہم ایسی صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے آپ نے بوگس میٹرز پکڑے ہیں، بچیکی کے جو نامی گرامی لوگ ہیں، جن میں کوئی سابقہ ایم پی اے بھی انوالو ہیں، ان لوگوں کے خلاف اب تک آپ نے کارروائی کیا کی ہے؟ دوسرے نمبر پہ میں عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس چوری میں جو ہمارے سورسز سے ہمیں پتہ چلا ہے، بہت بڑی جو وابڈا کے اندر، وابڈا یونینز کے اندر کالی بھیڑیں موجود تھیں، وابڈا ڈپارٹمنٹس کے اندر کالی بھیڑیں موجود تھیں، ان سب کی ملی بھگت سے کئی عرصہ دراز سے یہ جو بجلی چوری کے واقعات ہیں، ٹرانسفارمر چوری کیے جاتے ہیں، بجلی کی تاریں چوری کی جاتی ہیں، لوگوں کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ کئی بچیکی میں ملز ایسی ہیں جہاں پہ بجلی چوری کی جا رہی تھی، اور اس کی ساری پشت پناہی کرنے والے ایک بہت بڑا گروہ ہے جو کہ وابڈا سب ڈویژن بچیکی، سب ڈویژن بڑا گھر، سید والا، یہاں پہ وہ سب لوگ موجود ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایس سی صاحب اور لیسکو کے جو سی او ہیں لاہور پرویز چٹھا صاحب، وہ ان تمام معاملات کو خود نگرانی کریں اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں۔ اس میں ایک دو نام ہیں جو میں لینا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ ان لوگوں کو ان کا چہرہ فاش کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک بندہ جس کا نام ہے اسسٹنٹ لائن مین ہے شہباز، اسسٹنٹ لائن مین رانا شہباز، جو کہ ایک یونین کا لیڈر ہے، اور اس کے ساتھ جو ایکسین صاحب ہیں جاوید اقبال صاحب، جو کہ پہلے یہاں پہ ایس ڈی او تھے، اور 6 سال مسلسل ایس ڈی او رہنے کے بعد یہیں پہ وہ پروموشن ان کی ہو گئی ایز ایکسین۔ تو میں وابڈا کے حکام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کون سا قانون ہے کہ ایک آفیسر ایک جگہ پہ 6 سال ایس ڈی او رہتا ہے،
और बाद में उसी जगह पे प्रमोशन होकर एक्सियन बन जाता है। तो मैं आपके नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ कि इन लोगों ने एक्सियन, ये असिस्टेंट लाइनमैन राना शहबाज जिसके और इसके करिंदे, ये सब एक बहुत मुनज़्ज़म ग्रुप है, मुनज़्ज़म गिरोह है जो अरसा दराज से आवाम को लूट रहा है। तो हम ये डिमांड करते हैं कि इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं बुचेकी की आवाम से एक अपील करना चाहता हूँ। देखें, हमें जो इस वक्त पार्टी गवर्नमेंट में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने अपना नुमाइंदे डिक्लेयर किया है बुचेकी टाउन के अंदर, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि बुचेकी टाउन के हर शहरी के जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़, आपकी जो डिमांड्स हैं उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाना, और आपके लिए हर वो कदम उठाना जिसमें आपका फ़ायदा हो, और हर उस इंसान के ख़िलाफ़ खड़े होना जो आपके लिए जो आपको नुकसान पहुंचाए। तो मैं आपसे इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि हमने अब इन जो बड़े डाकू हैं, ये भेड़िए हैं, हमने इन पे हाथ डालना है। जिस तरह इमरान खान ने जो दूसरी दीगर जमातें थीं उनके जो करप्ट लोगों के ऊपर हाथ डाला, वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इसी तरह इंशाल्लाह हम भी इन पर हाथ डालेंगे। ये रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, हमारे ख़िलाफ़ बड़ी मुहिम जो करेंगे, लेकिन हमें सिर्फ आपके साथ की ज़रूरत है। अगर आप लोग हमारे साथ हैं तो हम इनका डट कर मुकाबला करेंगे। इंशाल्लाह हम सब डट कर मुकाबला करेंगे। और जो आज तक बुचेकी के अंदर होता आया है कि जो कोई मर्ज़ी करे और उस पे ऊपर कभी किसी ने हाथ ही नहीं डाला। कुछ लोगों के ताल्लुकात होते हैं, कुछ लोग डरते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। और ये जो वापडा इश्यूज़ है इनके ऊपर मज़ीद जो मतलब डिस्कशन है वो, और आपको तक जो मज़ीद डिटेल्स हैं वो राना फ़ारूक अहमद साहब वो बताएंगे। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो साबका MPA साहब हैं वो नाम नहाद जाली ईमानदार और मेरिट की बात करते थे, उनका ये डिस्पोज हो गया है सारा आवाम के सामने कि वो नुमाइंदगी का हक़ नहीं रखते, कि जो बिजली चोरी करते हैं वो आवाम के नुमाइंदे कैसे हो सकते हैं। ये जो इसके पीछे बिजली चोरी में सबसे ज़्यादा जो काली भेड़ महकमा वापडा की है वो मोहम्मद शहबाज असिस्टेंट लैंडमैन है, जो यूनियन के नाम पर ब्लैक मेलिंग करता है अफसरों को। और सबको पता है कि उसने जब इलेक्शन लड़ा है तो वो साहब का MPA, उस वक़्त के जो MPA था उसकी गाड़ियों में वो कंपेन करता था। MPA और उसका गठजोड़ है, ये सारी बिजली चोरी जो करवा रहा है ये शहबाज करवा रहा है यूनियन के नाम पर। और फिर ये नहीं कि सिर्फ बिजली चोरी करवाते हैं, ये खुद चोर वापडा के ट्रांसफार्मर चोरी करवा लेते हैं, वापडा की LT केबल चोरी करवाते हैं, वापडा के मीटर चोरी करवा के ये फरोख्त करते हैं। हम ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। मुझे अगर इस बारे में हलफ भी देना पड़े तो मैं ये हलफ देने के लिए तैयार हूँ कि ये वापडा के खुद सामान चोरी करवा के बेचते हैं ये लोग। इन्होंने एक ग्रोह बनाया हुआ है, ये काली भेड़ों का एक पूरा रेवड़ बना हुआ है। और इनकी जो सरपरस्ती है वो भेड़िया तो असल है एक्सियन, जो सबसे पहले जो SDO था यहाँ पे तो उस वक्त भी ये करते रहे हैं सारे ये 2 नंबर काम, और अब वो वहाँ पे वो एक्सियन बन के बैठ गया। तो क्या ये इनकी सारी सर्विस बुचेकी डिवीज़न में मखसूस है और कोई महकमे में अफसर ही नहीं है कि जो उसको मैं वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर इजाज़ शाह साहब से मुतालबा करता हूँ, मैं वापडा के चेयरमैन वापडा के CEO से मुतालबा करता हूँ कि ये इस एक्सियन को अगर यहाँ पर बिजली चोरी रोकनी है, अगर करप्शन रोकनी है तो एक्सियन का फिलफौर तबादला किया जाए। कुछ मीटर रीडरों के या मीटर इंस्पेक्टर के तबादले करने से यहाँ पर बिजली चोरी या करप्शन ख़त्म नहीं हो जाएगी। वो जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर जाके भी वो यही काम करेंगे। तो ये इसका हल नहीं है। इन काली भेड़ों को, इस गंदगी को महकमा से साफ़ किया जाए, इनको निकाला जाए महकमा से, ताकि ये बिजली चोरी जो यहाँ पर हो रही है इसका सद्देबाब हो सके। तो मैं ये गुजारिशात करना चाहता था। और मज़ीद अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं, भी ये सस्पेंड रह एक्सियन साहब हैं जो यहाँ पर सब डिवीज़न बुचेकी में, जैसा कि आपको बताया कि 5-6 साल से SDO हैं यहाँ पर। और जब जहाँ जैसे ही ये बनी है
डिवीज़न बनी है, वापडा डिवीज़न बनी है, वहाँ पे एक्शन उस वक्त से तैनात हैं। और ये जो शहबाज एंड को है, इनको महकमा से 10-15 साल पहले इनको महकमा से निकाल दिया गया था 99 में, लेकिन ये पता नहीं किस तरीके से फिर वो पैसे दे लेके या किस तरह रिश्वत दे के भी ये बहाल हो गए हैं और उस वक्त से दोबारा महकमे को लूट रहे हैं। शहबाज ठाकर के साथ ये पूरी गैंग है, इनका सारा उन बाकी लोगों के नाम भी बताए ना। बाकी लोग जो है बाकी लोग तो चेले हैं, वो तो आप उसको मोरे कह सकते हैं ना, लेकिन असल तो यही है ना। तो जब वो यही है। हाँ, एक बात मैं और कर देना चाहता हूँ कि अगर महकमा वापडा ने इनके खिलाफ एक्शन ना लिया तो फिर हम हक महफूज रखते हैं कि हम खुद मुद्दई बन के इसको FIA में ले जाएंगे, फिर FIA इंक्वायरी करेगी, वो इनको पकड़ेगी। अगर महकमा नहीं पकड़ेगा तो फिर हम FIA का जाने का हक महफूज रखते हैं। राना शहबाज के एसेट्स देखें पहले क्या थे आज। इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जिस असिस्टेंट लैंडमैन राना शहबाज की हम बात कर रहे हैं, आप बुचेकी के रहने वाले बखूबी जानते हैं कि इनके जो एसेट्स हैं वो पहले क्या थे और आज इनके एसेट्स करोड़ों में हैं। और एक असिस्टेंट लैंडमैन करोड़ों के एसेट्स बनाता है और महकमा बिल्कुल बेखबर है। तो हम ये चाहते हैं कि महकमा जो है इसके ऊपर एक्शन ले। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो मजबूरन इसके ऊपर एहतजाज भी होंगे, इसके ऊपर धरने भी होंगे। और तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं इसके ऊपर मतलब बोगस मीटर्स पकड़े हुए। तो अब इसके अलावा एक और मैटर था, वो मुजफ्फर अवान साहब का, जो एक बुचेकी के अंदर राइस मिल थी जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल सामने आया। और इसी ग्रुप ने, राना शहबाज एंड ग्रुप ने उसके ऊपर जो मुजफ्फर अवान था उसके ऊपर सारा मलबा डालने की कोशिश की गई, उनको टॉर्चर किया, उनको ज़हनी तौर पे उन पर दबाव डाला और इतना प्रेशराइज उनको किया जी, और इनको इतना प्रेशराइज़ किया कि वो मतलब उनकी डेथ हो गई। तो हम इन तमाम मुतालबात जो हमारे हैं वो हम करेंगे एससी राना अयूब साहब से। आप एक ईमानदार ऑफिसर हैं, आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो एक जॉब करियर है वो आप बिल्कुल बेदाग है। इसलिए हम आपसे डिमांड करते हैं कि इस इशू के ऊपर एक इंसाफ कीजिए। जिस तरह कुरान पाक में आता है कि ईदिलु हुआ अक़रबु लित्तक़वा, कि अदल करें, ये तकवा के ज़्यादा करीब है। और यही हम आपसे डिमांड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।